ناظرین آداب، اردو خبروں کے اس بلیٹن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پہلے ایک نظر آج کی سرخیوں پر۔ نہرو پارک میں واٹر سپورٹس اکیڈمی کا قیام، مرکزی وزیر کرن رجیجو اور ایل جی منوج سنہا نے کیا افتتاح۔ نوجوان انٹرپرینرشپ کو اپنا کر خود روزگار کے وسائل پیدا کریں، ایل جی کی نوجوانوں سے تلقین۔ جموں کشمیر میں کورونا معاملات میں اچھال کا رجحان جاری، آج ہوئی 1005 نئے کیسز کی تصدیق، اور بھارت اور نیدرلینڈ بھارت بحر الکاہل خطے میں سپلائی چین کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں، وزیر اعظم نریندر مودی۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ کھیل کود کے مرکزی وزیر مملکت کرن رجیجو نے آج لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی موجودگی میں نہرو پارک میں کھیلو انڈیا سینٹر آف ایکسلنس کی واٹر سپورٹس اکیڈمی کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ مذکورہ اکیڈمی میں آبی کھیلوں کے لیے درکار جدید ساز و سامان دستیاب رکھا گیا ہے۔ منوج سنہا نے کہا کہ جموں کشمیر کے کھلاڑی بھارت کی ترقی اور امن کے سفیر بنیں گے۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت نے جموں کشمیر کے سپورٹس بجٹ کے لیے 513 کروڑ روپے کی رقم مختص رکھی ہے۔ سینٹر یہاں بنا ہے وہ اتنا بہترین ہے اور یہاں کے کھلاڑیوں میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ بھارت سرکار نے طے کیا کہ اسے ہی کھیلو انڈیا سینٹر آف ایکسلنس بنایا جائے اور اس یوجنا میں شامل کیا جائے، اور آج بھارت کے کھیل منتری جی نے اس کا اوپچارک روپ سے ادگھاٹن کیا۔ میں نے پہلے ہی دھنیواد دیا ہے۔ کھیلو انڈیا کا جو لکشیہ نردھارت کیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ اسپورٹس سینٹر بنیادی ڈھانچے میں آدھنک بدلاؤ کے لیے اچ کوٹی کے پرشکشک، اچ گنوتا والے سنسادھن اپلبدھ کرائے جا سکیں، تاکہ آنے والے 10 برسوں میں اولمپک کھیلوں میں اور ان کی پدک تالیکا میں بھارت سروشریشٹھ پردرشن کر سکے، یہ اس کا ادیشیہ ہے۔ اپنی تقریر میں مرکزی وزیر کرن رجیجو نے کہا کہ حکومت جموں کشمیر میں کھیل سرگرمیوں کے فروغ کے لیے اقدامات کرتی رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ خطے میں خواتین کے لیے فٹ بال لیگ کے انعقاد کے لیے منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ یہاں پوٹینشیل ہے، یہاں پراکرتک پوٹینشیل بھی ہے، اور یہاں کے جن لوگوں میں بھی پوٹینشیل ہے۔ اب اس کو موقع دینے کا ضرورت ہے۔ بھارت سرکار اور جموں کشمیر کے پرشاسن مل کر کے جو قدم اٹھا رہے ہیں، ابھی لیفٹیننٹ گورنر صاحب نے آپ کو ڈیٹیل میں جو بتایا، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آنے والے دنوں میں یہاں کھیل کے چھیتر میں اور یووا کاریکرم کے معاملے میں کتنا ہم آگے بڑھنے جا رہے ہیں۔ اور یہ خوشی کی بات ہے کہ ہندوستان کے اندر میں جتنا ہم نے پچھلے کچھ سالوں میں کھیل کے چھیتر میں جو انفراسٹرکچر بنایا ہے، سب سے زیادہ جموں کشمیر کو ہم نے مدد کیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پردھان منتری آدرنیہ نریندر مودی جی جموں کشمیر کے لیے کتنا سوچتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہاں پہ جو انفراسٹرکچر بنی ہے، وہاں گاؤں میں، آپ کے تعلقہ میں، ڈسٹرکٹس میں جو بھی فیسلٹی ہے، اس کو گراس روٹ لیول میں جو بچے ہوتے ہیں کم عمر کے، جو ہمارا فیوچر چیمپئن بننے والے ہیں، ان کو وہاں کیسے موقع ملے، پھر وہاں سے چنت کر کے پھر اس کو آگے کھیلو انڈیا سینٹر میں کیسے لانا ہے، یہ ایک بہت لمبا پرکریا ہے، وہ تیاری ہو چکا ہے، اور انہی کا ایک جو قدم ہے وہ آج ہم لوگ یہاں اکٹھت ہوئے ہیں۔ تقریب پر ایل جی کے مشیر فاروق خان کے علاوہ انتظامیہ کے کئی افسران موجود تھے۔ اس دوران سپہر سری نگر کے سنتھیٹک ٹرف گراؤنڈ میں مردوں اور خواتین کے رگبی میچ کھیلے گئے۔ جموں کشمیر رگبی ایسوسی ایشن اور فٹ بال ایسوسی ایشن کے اہتمام سے کھیلے گئے ان میچ میں پہلا مقابلہ جموں کشمیر کی مردوں کی ٹیم اور ریسٹ آف انڈیا کی ٹیم کے درمیان ہوا، جبکہ خواتین کے مقابلوں میں جموں کشمیر کی ٹیم نے ریسٹ آف انڈیا کے ساتھ اپنا میچ کھیلا۔ اس موقع پر مرکزی وزیر مملکت کرن رجیجو اور ایل جی کے مشیر فاروق خان بھی موجود تھے۔ مزید خبروں سے پہلے یہ وقفہ۔ ابو جان، آپ نے سے بگاڑ رکھا ہے۔ لمٹ پہ کرو تو کچھ برا نہیں ہوتا ہے۔ بنا لمٹ شاپنگ کرے گی آپ کے کارڈ پر ایڈ آن جو ہے۔ میں نے تو کارڈ میں لمٹ سیٹ کر دی ہے۔ اچھا، اس کے فائدے یہ ہیں کہ جوخم کم ہو جاتا ہے، اور اگر فراڈ بھی ہوا تو فوراً بینک کو خبر کر دیجیے، نقصان کم۔ دادو اگلی بار یہ پنک ڈریس، یو آر دا لمٹ۔ لمٹ تو سیٹ ہے۔ RBI کہتا ہے جانکار بنیے، چوکنے رہیے۔
SKICC श्रीनगर में आज मिशन यूथ के तहत नौजवानों के लिए तालीम से एंटरप्रेन्योरशिप तक के मौजू के तहत एक वर्कशॉप मुनाकिद हुआ, जिसमें नौजवानों को कारखानादारी और सनतकारी से मुत्तलिक बुनियादी जानकारी फराहम की गई। वर्कशॉप में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने खास मेहमान की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने नौजवानों से तलकीन की कि वो सरकारी नौकरी की तलाश के बजाय एंटरप्रेन्योरशिप को अपनाने पर तवज्जो मरकूज करें। LG ने कहा कि एंटरप्रेन्योरशिप से न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी रोजगार के वसाइल पैदा किए जा सकते हैं। उन्होंने इस सिलसिले में नौजवानों को सरकार की जानिब से मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। मरकजी वजीर मुल्क डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज कठुआ में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी की एक मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में मरकजी मुआवनत वाली स्कीमों की अमल आवरी का जायजा लिया गया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर कठुआ राहुल यादव ने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए जिले के तरक्याती मंजरनामे के हवाले से जानकारी फराहम की। बाद में वजीर मौसूफ ने मुतल्लिका अफसरों पर जोर दिया कि वो इन प्रोजेक्टों को मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल करने के लिए इकदाम करें। शोपियां जिले के चित्रगांव कलान इलाके में फोर्सेज और मिलिटेंटों के माबैन झड़प शुरू हुई है। हमारे नुमाइंदे ने जराया का हवाला देकर खबर दी है कि फोर्सेज ने मज़कूरा इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की खबर मिलने के बाद इलाके का मुहासरा किया और तलाशी कार्रवाई शुरू की। इस दौरान इलाके में छुपे मिलिटेंटों ने फोर्सेज पर गोलियां चलाई और तरफेन के माबैन तसादुम शुरू हुआ। आखिरी इतलात मिलने तक झड़प जारी थे। मुल्क कोविड टीकाकारी मुहिम के सिलसिले में गैर मामूली कामयाबी हासिल करने के नजदीक है। अब तक 9 करोड़ 80 लाख से ज्यादा अफराद को पहले ही कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों में 1,45,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। ये मुल्क में कोविड-19 आलमी वबा के फैलने के बाद से कोविड के मामलों की सबसे ज्यादा तादाद है। नए मामले में इजाफे के पेश नजर मुल्क में सेहतियाबी की शरह मजीद कम होकर 90.79% पर आ गई है। जम्मू कश्मीर में कोरोना के मामलात में आज उस वक्त एक बड़ा उछाल देखने को मिला जब पिछले 24 घंटों में यूटी में 1005 नए मामलात की तस्दीक हुई। इनमें से 706 का ताल्लुक कश्मीर जबकि 299 का ताल्लुक जम्मू सूबे से है। इसी मुद्दत के दौरान वायरस से मुतासरा 6 मरीजों की मौत वाक़ हुई, तहम 359 मरीज सेहतियाब हुए। यूटी में इस वक्त 6,755 एक्टिव मरीज जेर इलाज हैं जबकि वायरस से मरने वालों की तादाद 2029 हो गई है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने पांपोर के 4 इलाकों को कंटेनमेंट जोन करार दिया है, जिनमें न्यू कॉलोनी कदलबल, हमदानी मोहल्ला कदलबल, वानी मोहल्ला और नमलबल शामिल हैं। तहसीलदार पांपोर और मेडिकल ऑफिसर की सरबराही में एक टीम ने इन इलाकों का दौरा किया। वाज़ेह है कि इन इलाकों में कोविड-19 की 28 मुस्बत मामलात सामने आए हैं, जिसके बाद इंतजामिया ने इन इलाकों को कंटेनमेंट जोन करार दिया है। पार्लियामेंट मेंबर मोहम्मद अकबर लोन ने आज बांडीपोरा में अफसरों की एक मीटिंग के दौरान मरकजी मुआवनत वाली स्कीमों और प्रोजेक्टों की अमल आवरी का जायजा लिया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर उवैस अहमद ने तरक्याती मंजरनामे का खाका पेश किया। मोहम्मद अकबर लोन ने हाथ में लिए गए प्रोजेक्टों की बरवक्त तकमील के लिए तमाम वसाइल बर्रुए कार लाने की हिदायत दी। नेशनल कॉन्फ्रेंस खवातीन विंग की सदर शमी फिरदौस ने कहा कि जम्मू कश्मीर की नौजवान पौध को जहनी परेशानी में मुब्तला किया गया है। कश्मीर सूबे से वाबस्ता पार्टी की खवातीन डीडीसी मेंबरान के एक इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इंतजामी सतह पर जम्मू कश्मीर के लिए अवाम दुश्मन फैसले लिए जाते हैं। उन्होंने डीडीसी मेंबरान से तलकीन की कि वो अवाम की उम्मीदों पर खरा उतरें। इस मौके पर पार्टी के मुआविन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर कमाल और दीगर लीडरान मौजूद थे। कांग्रेस पार्टी ने जिला अनंतनाग के वेरीनाग इलाके में महापंचायत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, जिसमें बैक टू विलेज प्रोग्राम के तहत दरदस्त लिए गए कामों के अलावा लोगों से जुड़े मसाइल का जायजा लिया गया। पार्टी की तरफ से जारी किए गए एक प्रेस बयान में कहा गया है कि मुतल्लिका इलाकों के सरपंचों और पंचों से मौजूदा इंतजामिया की तरफ से लोगों के लिए किए जा रहे इंतजामात से मुतल्लिक जानकारी हासिल की जा रही है ताकि पार्टी इन मसाइल का इजाला करने के लिए अपना कलीदी रोल निभा सके। कॉन्फ्रेंस में पार्टी के जम्मू कश्मीर की इकाई के सदर GA मीर के अलावा कई सीनियर लीडरों ने शिरकत की। CPIM के लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने इंतजामिया की तरफ से पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का दर्जा कम करके पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी में तब्दील करने पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि ऐसे फैसलों से लोगों में सरकार की दियानतदारी पर शक व शुबहात मजीद बढ़ जाते हैं। सोपोर पुलिस ने 29 मार्च को हुए मिलिटेंट हमले में मुलविस मिलिटेंटों को पकड़ने में एक अहम पेशरफ्त हासिल की है। पुलिस ने आज उस हमले में इस्तेमाल की गई मोटर बाइक जब्त की है और मिलिटेंटों के एक ओवरग्राउंड वर्कर को गिरफ्तार किया है। वाज़ेह है इस हमले में 2 काउंसलरों और एक पुलिस एहलकार को मिलिटेंटों ने हलाक किया था। बिजबिहाड़ा में कल मिलिटेंट हमले में मारे गए टेरिटोरियल आर्मी के एहलकार मोहम्मद सलीम आखून को आज आबाई इलाके में सुपुर्द खाक किया गया। इससे काबुल फौज की विक्टर फोर्स के GOC रेशमबाली और SSP अनंतनाग इम्तियाज हुसैन के अलावा कई फोर्सेज एहलकारों ने मोहम्मद सलीम आखून को खराज पेश किया। फौजी तर्जुमान के मुताबिक लश्कर-ए-तैयबा तंजीम के मिलिटेंट आखून की हलाकत में मुलविस हैं।
इस दौरान हवालदार मोहम्मद सलीम आखुंद को खराज पेश करने के लिए बादामी बाग कैंट में एक तकरीब मुनाकिद हुई। इस मौके पर चिनार कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे और दीगर अफसरान ने हवालदार की कुर्बानी को याद करके उसे कौम का अजीम फौजी करार दिया। चित्रगाम कलान शुपैया के गुलजार अहमद गनाई ने इंतजामिया और सिक्योरिटी एजेंसियों से अपील की है कि वो 6 अप्रैल से लापता उनके बेटे को खोज निकालने में उसकी मदद करें। वाज़ेह है कि गुलजार अहमद गनाई का बेटा फैसल गुलजार 6 अप्रैल को कुछ सामान खरीदने के लिए घर से निकला था, ताहम अब तक वो घर वापस नहीं लौटा है। फैसल गुलजार के अफराद खाना खुसूसन उसकी 4 बहनें उसे घर वापस आने की मिन्नतें कर रही हैं। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल कुलगाम के चेयरमैन मोहम्मद अफजल परे ने आज अपने ओहदे का चार्ज संभाला। उन्होंने कहा कि वो जिले की हर सतह पर तरक्की के लिए काम करेंगे। इस मौके पर जिले के डिप्टी कमिश्नर बिलाल महिउद्दीन और तरक्याती काउंसिल के सभी मेंबरान मौजूद थे। बांडीपुरा से गुरेज तक जाने वाली 85 किलोमीटर लंबी सड़क को यकतरफा ट्रैफिक की आवाजाही के लिए खोल दिया गया है। आज गाड़ियों को बांडीपुरा से गुरेज जाने की इजाजत दी गई और आज कई गाड़ियों को लाजमी अशा के साथ गुरेज रवाना किया गया। गुरेज के लोगों ने उनके मसाइल उजागर करके इंतजामिया के नोटिस में लाने के लिए दूरदर्शन न्यूज का शुक्रिया अदा किया। आजादी का अमृत महोत्सव की मुनासिबत से कॉलेज ऑफ एजुकेशन श्रीनगर के NSS यूनिट ने मुशावरे के एक मुकाबले का एहतमाम किया। मुकाबले में कई कॉलेजों के तालिब इल्म ने भारत की तमद्दुनी विरासत के मौजू पर तस्वीरें बनाई। कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर रूही जान कंठ ने शुरका का इस्तकबाल करते हुए मुकाबले के अगराज व मकासद बयान किए। कल्चरल अकादमी के सेमिनार हॉल में आज एक अदबी तकरीब मुनाकिद हुई। सागर कल्चरल फोरम के एहतमाम से मुनाकिदा इस प्रोग्राम की सदारत ड्रामा निगार मोहम्मद अमीन भट्ट ने की। इस मौके पर उभरती हुई शायरा गजाला अंजुम के शेर मजमूए अधूरे ख्वाब की रस्मी रूनमाई अंजाम दी गई। वादी के मारूफ कलमकार ज़रीफ अहमद ज़रीफ की अहलिया के इंतकाल पर कई अदबी और समाजी तंजीमों ने अफसोस का इजहार किया है। महक ड्रामेटिक क्लब श्रीनगर, अदबी मरकज रफीआबाद, हल्के अदब सोनावारी, अदबी मरकज कमराज और दायरा अदब दिलना ने ज़रीफ अहमद ज़रीफ के साथ हमदर्दी का इजहार किया है। जम्मू कश्मीर कल्चरल अकेडमी के दफ्तर पर आज एक ताज़ियती इजलास हुआ जिसमें मरहुमा के हक में दुआई मगफरत की गई और ज़रीफ अहमद ज़रीफ के साथ ताज़ियत का इजहार किया गया। इस दौरान PDF के चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन ने भी ज़रीफ अहमद ज़रीफ की अहलिया के इंतकाल पर रंज का इजहार किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और नीदरलैंड भारत बहरुल खित्ते में सप्लाई चेन के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। नीदरलैंड के वज़ीर-ए-आज़म मार्क रटल के साथ वर्चुअल समिट में नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात जमहूरी अक़दार की इश्तराकियत पर मबनी हैं। उन्होंने कहा कि सरमायाकारी को फरोग देने वाले एक तेज रफ्तार निज़ाम के क़याम से भी दोनों मुल्कों के दरमियान मजबूत माशी ताउन को नई रफ्तार मिली है। मौसम महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी में अगले 24 घंटों के दौरान मतलब जुज़वी तौर अबर आलूद रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 21.6 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 6.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 34 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 16.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का एक बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD न्यूज श्रीनगर पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया। खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटिया। हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटिया। काश मैं महंगी टिकिया ले पाती। महंगी नहीं, फेना सुपर वॉश टिकिया आजमाइए। बेहतरीन झाग, रोज और चंदन, सुपर चमक। महंगी टिकिया जैसी धुलाई फेना सुपर वॉश प्लस में समाई। फेना ही लेना। अब पाएं 10 रुपए फेना टिकिया पर 60 ग्राम मुफ्त। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। रिश्तों में स्वच्छता हो तो एक भरोसा